Hello students, how are you all? I hope that you all are fit and fine, and I hope you have completed the previous chapter. So now let's move into the chapter number 12, and the chapter name is factorization. So student, इस chapter में हम जानने वाले हैं about factorization. Okay, so basically हम जब numbers का factor निकालते हैं, ठीक है, हमने ये जो है previous class में करा था, like how to take out the factors and all. Okay, so let's start the chapter of factorization and know it in detail. Okay, but before starting the chapter, here you can see the warm activity which is given to you. During math period in a class, the teacher asked two students to solve a factorization problem like this one. Okay, तो टीचर ने बोला दो स्टूडेंट को कि ये फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ वन स्टूडेंट आंसर वाज 2 into x minus 5 into x minus 3 and another student answer was x minus 5 into x minus 3. Whose answer is correct? अब एक स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया कि इसका आंसर तो कुछ इस तरीके से आ रहा है और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि नहीं, इसका आंसर x minus 5 और x minus 3 के फॉर्म में आ रहा है. ओके, तो किसका आंसर करेक्ट है? So student, as you can see the equation over here, as you can see the sum over here. Okay, so basically ये जो है a minus b the whole square वाले फॉर्मूले में डिवाइडेड है. तो बेसिकली स्टूडेंट इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है और छोटे फॉर्म में, एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमको लेकर आना है कि किनको मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिला होगा, ठीक है. सो स्टूडेंट आप यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हो, ठीक है. हमने यहाँ पर 2 को कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 8x हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है. अब 2 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ओके, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है. अब हम इसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस या माइनस करके 8 आए. सो बेसिकली 5 3 इज 15 एंड 5 प्लस 3 इज 8, ठीक है. तो इसे हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15, ठीक है. सो इट विल बी x कॉमन हो जाएगा यहाँ इन दोनों में और फिर इधर आ जाएगा अंदर x माइनस 3, ठीक है. यहाँ पर माइनस को कॉमन करेंगे, 5 को कॉमन करेंगे और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है. सो द इक्वेशन विल बी x माइनस 3, जो फैक्टराइजेशन फॉर्म में निकलेगा वो ऐसे कुछ निकलेगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5. सो इसका मतलब ये हुआ जो अदर स्टूडेंट ने किया था सॉल्व, दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है. Now let's move into the you know point. We can show a natural number and an algebraic expression as a product of prime factor and algebraic factors respectively. हम natural number और जो algebraic expression है उसको product of prime factor के फॉर्म में और algebraic factor के फॉर्म में हम उसे दिखा सकते हैं, ठीक है. Terms are formed as product of factors. अब terms जो है वो formed होते हैं as the product of the factors. Okay, we can express algebraic expression as product of their factor. हम algebraic expression को as the product of their factor explain कर सकते हैं, ठीक है. For example, 3xy has been formed by the factors 3x and y. 3xy जो है वो फॉर्म होता है by the factor 3x और y, ठीक है. 3xy equals to 3 into x into y, ठीक है. In algebraic expressions we use the word irreducible in place of prime. हम algebraic expression में word irreducible को use करते हैं in place of prime. We say that 3 into x into y is the irreducible form of 3xy, यानी कि प्राइम फॉर्म है 3xy का, ठीक है. बट 5 into xy is not an irreducible form of 3xy, पर 5xy जो है वो तो नहीं है उसका, ठीक है. Since the factor xy can be further expressed as the product of x and y, that is xy equals to x into y. अब xy जो है वो प्रोडक्ट किसका है, वो x और y का है, ठीक है. 1 is a factor of every term. 1 जो है वो सभी टर्म का फैक्टर है, but unless it is specially required, we do not show 1 as separate factor of any term, ठीक है. बट ये स्पेशली रिक्वायर्ड है और हम 1 को एज अ सेपरेट फैक्टर ऑफ एनी टर्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 जो है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ओके. And x plus 1 and x plus 2 are the factors of this one. Okay, x plus 1 और x plus 2 जो है वो factors है इस इक्वेशन के, ठीक है. Now let's start the chapter. Factorization is the reverse process of multiplication. जो factorization होता है स्टूडेंट वो reverse process होता है किसका, multiplication का, ठीक है. When we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. हम जब factorize करते हैं algebraic expression को तो हम उसे लिखते हैं as the product of the factors. Okay, these factors may be numbers, algebraic variables और algebraic expression. अब ये factors number हो सकते हैं, algebraic variables हो सकते हैं या फिर algebraic expression हो सकते हैं. ओके, expression like 3xy, 5x square y, 2x into y plus 2, okay, 5 into y plus 1 x plus 2, okay, are already factor form. ये सभी factor form में हैं. Their factors can be just read off from the form.
इनके फैक्टर्स बस हम रीड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। In the expression like 2x plus 4, 3x plus 3y, x square plus 5x, x square plus 5x plus 6, it is not obvious what their factors are. ये obvious नहीं है कि उनके फैक्टर क्या है. We use systematic method to factorize their expression. हम systematic method का use करते हैं ताकि उनकी expression जो है उनको अच्छे से factorize कर सके, ठीक है. That is to find their factors, यानी कि उनके factors को find out कर सके, ठीक है. Now let's see over here factorization by taking out common factors. We write the irreducible factor form of each term of the algebraic expression, take out their common factors and combine the remaining factors in each term in accordance with the distributive law. अब यहाँ पर बोला है कि हम लिखते हैं irreducible factor form को of each term of the algebraic expression, ठीक है. हम उनके like common factor जो उनको निकालते हैं and combine करते हैं remaining factors को हर एक term में in accordance with the distributive law. Okay. Now let's see the example 1. फैक्टराइज करना है हमें 5x plus y plus 15x को, ठीक है. तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें आप इस तरीके से भी इसे कंप्लीट कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो. लाइक फर्स्ट वी राइट द इररेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म. पहले तो हम इनका इररेड्यूसिबल फॉर्म लिखेंगे इनका, ठीक है, यानी कि 5xy हो जाएगा 5 into x into y और 15x हो जाएगा 3 into 5 into x. ओके. The two terms have 5 and x as common factor. अब दोनों टर्म में 5 और x कॉमन फैक्टर है, ठीक है. तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 into x into y plus 3 into 5 into x. ओके. Then 5x into y plus 5x into 3. ओके. Now we combine the two terms using the distributive law. Distributive law हम यूज करेंगे, यानी कि 5x into y plus 3. ओके. So it will be therefore 5xy plus 15x will be 5x into y plus 3. This is the desired factor form. ये इसका desired factor form है, ठीक है. Now next is student example 2. फैक्टराइज करना है हमें 10x square minus 18x cube plus 14x के पावर में 4. फर्स्ट वी राइट द इररेड्यूसिबल फैक्टर हम लिखेंगे इसका, ठीक है. तो कुछ इस तरीके से आप लिखोगे, फिर इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स के कॉमन है. जब 3 टर्म्स 2x एंड x जो है ये कॉमन टर्म्स है, कॉमन फैक्टर्स है, तो यानी कि 2x के पावर में स्क्वायर. ओके. 2x के पावर में स्क्वायर जो है वो कॉमन आएगा हमारा तीनों में. ओके. यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर भी और इधर भी, ठीक है. सो 2x स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो हमारा ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 5 minus 9x plus 7x स्क्वायर, ठीक है. इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर इसका बड़ा है तो पहले ये आएगा फिर ये, ठीक है. अब उसके बाद स्टूडेंट हियर यू कैन सी हम लास्ट में लिखेंगे therefore 10x square minus 18x cube plus 14x 4 equals to 2x square ब्रैकेट के अंदर 7x square minus 9x plus 5. Okay, this is the desired factor form. Okay. Now student, before moving further, here comes the point. Have a look. Later these factor will be done only in one line, but the detailed procedure must remain in the mind, otherwise you will not be able to factorize successfully. अब later on क्या होता है, ये जो factor होते हैं ये सिर्फ अपने mind से solve करते हैं, इनके लिए long method नहीं चाहिए होता है, वो long detailed procedure आपको समझाने के लिए हमने use किया है यहाँ पर, ठीक है. Now let's see the factorization by regrouping terms. Okay. So consider the expression 3xy minus 5 plus 3y minus 5x. There is no single factor common to all the terms. यहाँ पर कोई single factor नहीं है जो common हो सभी terms में, ठीक है. Also the first two terms have no common factor and the last two terms have no common factor. मतलब first two terms में कोई common factor नहीं है, ऐसे ही last two terms में कोई common factor नहीं है, ठीक है. But there is a common factor for 3y in the first and third term. And minus 5 is a common factor in the second and fourth term. 3y जो है वो first and third term में क्या है, common factor है, और जो minus 5 है student वो common factor है second और fourth term में, ठीक है. So we regroup the terms, that is we put the first and the third term together and the second and fourth term together. हम regroup करेंगे terms को, यानी कि first and third term को हम एक साथ लिखेंगे और second and fourth term को एक साथ लिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3xy minus 5 plus 3y minus 5x हमने लिखा, ठीक है. फिर उसके बाद आपने देखा 3xy प्लस 3y को एक साथ लिखा, माइनस 5x को एक साथ लिखा, यहाँ पर 3y कॉमन हो गया, फिर x प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 5 कॉमन हो गया, 1 प्लस x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस x मतलब x प्लस 1 ही होता है, ठीक है. तो 3y इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हम इधर लिख देंगे, 3y माइनस 5 को एक साथ लिख देंगे, ठीक है. सो हमने लिया x प्लस 1 को एज अ कॉमन फैक्टर ओवर हेयर, ठीक है. सो दीज फैक्टर्स आर द इरिवर्सिबल वन. ओके, मतलब कि इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट इज एग्जांपल थर्ड, फैक्टराइज 6xy minus 4y plus 6 minus 9x. ओके, सो हमें चेक करना है इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर अमंग ऑल द टर्म्स. देयर इज नन, मतलब कोई कॉमन फैक्टर अगर आपको नजर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो नन लिखोगे आप, ठीक है. सो बट वी हैव 2y कॉमन इन फर्स्ट टू टर्म्स.
पहले 2 की टर्म में हमारे 2y कॉमन है एंड 3 कॉमन है लास्ट के 2 की टर्म में, ठीक है। तो 2y हमने लिया इधर और इधर 3 को कॉमन लिया, 3x माइनस 2, ये 2 माइनस 3x है, ठीक है। नाउ वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ 6 एंड माइनस 9x का हम ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, यानी कि 2y कॉमन लिया माइनस 3 कॉमन लिया, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3, सो टेकिंग आउट 3x माइनस 2 एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। Now let's move into the example 4. So here you have to factorize 15pq plus 15 plus 9q plus 25p. इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो there is no factor common in all the terms. कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है इन टर्म्स में, ठीक है। If we take, अगर हम 15 को कॉमन लिया एज अ कॉमन फैक्टर इन फर्स्ट टू टर्म्स, इट गिव्स 9pq plus 1, ठीक है। बट द लास्ट टू टर्म्स डू नॉट गिव pq plus 1, सो वी रीग्रुप द टर्म्स। तो हम रीग्रुप कर देंगे टर्म्स को, यानी कि 15pq plus 15 प्लस 9q plus 25p है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इधर 3q जो है वो कॉमन हो गया, तो 5p प्लस 3 हो जाएगा, इधर 5 कॉमन तो 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 3q प्लस 5 हो जाएगा टीम, ठीक है, जिसमें हमने 5p प्लस 3 को कॉमन लिया है, ओके। Now let's move into the exercise part, exercise 12.1. So the first question is find the common factors of the given term. Common factor आपको find out करना है given term का, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर 20y दिया है और 22 दे रखा है आपको, ठीक है। So basically स्टूडेंट 20y 22 जो है वो 2 की टेबल से कट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आ जाएगा 4y और ये हो जाएगा 11, तो यानी कि 2 जो है इनका कॉमन फैक्टर है, 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन फैक्टर, ओके। तो इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी देखना है, उन्हें अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड वन, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज करना है हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। आपको यहाँ पर दिया 5x माइनस 30, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जो है वो कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 6, ओके। इस तरीके से आप इन्हें फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज 3a इंटू एक्स प्लस 2y प्लस b इंटू एक्स प्लस 2y, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y एक साथ और 3a प्लस बी को एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग रीग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग रीग्रुपिंग करके आपको फैक्टराइज करना है। 15xy है तो इसके साथ हम लिख देते हैं, ये प्लस 15xy है, ठीक है, प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 5y जो है वो कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x, ओके, माइनस 3x प्लस प्लस 1, ओके, एंड दिस विल बी माइनस ओवर हेयर, यहाँ पर आप क्या लोगे, 2 को कॉमन ले लोगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1, ओके। सो द आंसर विल बी 3x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, इन द अनदर वन 5y माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। Now next is student multiple choice question. Fifth question, the common factor of 12a square b 15ab square minus 18a square b square is, इनका common factor क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें, a जो है, ठीक है, a और b जो है वो कॉमन है इसमें, ठीक है, और तीनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ पर 3ab यहाँ पर कॉमन लेंगे, ओके। 3ab इज योर आंसर, ओके। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो करेक्ट ऑप्शंस पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज को यूज करके हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि वी हैव लर्न 3 आइडेंटिटीज। हमने 3 आइडेंटिटीज के बारे में सीखा था, जाना था, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a plus b minus b will be a square minus b square, okay। So we can write each identity in reverse order। हम हर एक identity को reverse order में लिखेंगे and use it to factorize algebraic trinomials, और इसे यूज करेंगे ताकि हम फैक्टराइज कर सके algebraic trinomials को, ठीक है, which are complete square और difference of 2 square। ये वो या तो complete square है या फिर difference है 2 square का, ठीक है। So here you can see the factorization when a quadratic trinomial is a complete square। फैक्टराइजेशन जब क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, ओके। जैसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी, फिर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी। सो वी कंपेयर द गिवन एक्सप्रेशन विद द आइडेंटिटी एंड फैक्टराइज अकॉर्डिंगली। हम कंपेयर कर रहे हैं गिवन एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी के साथ, ठीक है, और फैक्टराइज कर रहे हैं उसे उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 5 स्टूडेंट। फैक्टराइज 16x square plus 24xy plus 9x square plus 9y square
ओके, सो फर्स्ट वी हैव 16x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4x द होल स्क्वायर, ठीक है, और 9y स्क्वायर जो 3y द होल स्क्वायर के इक्वल है, तो और 24 जो है वो 2 इंटू 4 x इंटू 3y होता है। ओके, so the first and third term are complete square, first and third term तो complete square है with a positive sign before the middle term. This is similar to the identity, this one a square plus 2ab plus b square equal to a plus b the whole square, इस identity की जैसा ही है, सेम ही है, ठीक है। तो यानी कि 4x the whole square plus 2 into 4x into 3y plus 3y the whole square, तो ये हो जाएगा 4x plus 3y the whole square, ठीक है। Now let's see the example 6. So factorize 49y square minus 84yz plus 36z square, इनको हमें factorize करना है। So first of all 49y square is 7y the whole square, 36z square is 6z the whole square, minus 84yz is 2 into 7y into 6z. Okay, so it will be what, here you can see, ठीक है, इसको इसे ऐसे अरेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 7y minus 6z the whole square, ठीक है। Now factorization when an expression is different of two squares, ठीक है, तो यहाँ पर factorization है जब expression जो हो वो different हो दो स्क्वायर से, जैसे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। जैसे कि एग्जाम्पल 7 आपको दिया, फैक्टराइज करना है 64x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8x द होल स्क्वायर माइनस 9y द होल स्क्वायर। ओके, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 8x प्लस 9y और 8x माइनस 9y, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। Now student, the next question over here is example 8, factorize x की पावर में 4 minus 81. Okay, so basically यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं x के पावर में स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 9 के पावर में स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा x के पावर में स्क्वायर प्लस 9 और अदर ब्रैकेट में x के पावर में स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अब माइनस 9 जो है वो 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा x के पावर में स्क्वायर प्लस 9 एंड इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। Now next is student example 9, factorize करना है p के पावर में 4 minus q plus 4 the whole q plus r the whole 4. Okay, so first of all p के पावर में square the whole square, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p के पावर में square plus q plus r the whole square. Okay, p के पावर में square minus q plus r the whole square, ठीक है, तो p plus q square plus 2pr, okay, 2qr and then plus r square, ठीक है, और ये हो जाएगा p plus q plus r, okay, and this is p minus q plus r, this one will convert into this one, ठीक है। Now p square plus q square plus 2qr plus r square, okay, and then p plus q plus r in one bracket, p minus q minus r in another bracket, ठीक है। Now next is student example 10, factorize करना है हमें 100a square minus 9b square plus 24bc minus 61c square, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100a square है, ठीक है, तो 100a स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया माइनस, फिर 9b स्क्वायर माइनस 24bc प्लस 16c स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3b इंटू 4c प्लस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10a द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 दैट इज माइनस, ब्रैकेट हमने रिमूव कर दिया, माइनस 3b एंड माइनस माइनस विल बी प्लस ओवर देयर। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 10a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे इधर 3b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यानी कि ये हो जाएगा 10a प्लस 3b माइनस 4c एंड 10a माइनस 3b माइनस 4c, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 3b माइनस 4c माइनस 3b प्लस 4c ऐसे कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल 11, फैक्टराइज करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 को, ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, सिंपल कर सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि 4 4 से क्या होता है 16 होता है, 8 2 से 16 होता है, तो 8 में से 2 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16, ठीक है, ये दोनों टीम x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 8 हो गया इधर, ठीक है, इधर हमने माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो इधर x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, सो इट विल बी x प्लस 8 और x माइनस 2, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट एग्जांपल 12, फैक्टराइज 100p द पावर 5 माइनस 225p द पावर 3। ओके, तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, पहले 25 कॉमन ले लेंगे, 25p के पावर में क्यूब, ओके, इक्वल देन ब्रैकेट में 4p स्क्वायर, ओके, क्योंकि 25 इंटू 400 होता है, माइनस 9, ओके, सो इट विल बी 2p द होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि 2 का स्क्वायर वहाँ से ले गया, एंड इट विल बी यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2p प्लस 3 इंटू 2p माइनस 3 विद द क्वेश्चन 25p क्यूब, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल 13,
तो यहाँ पर बोला है स्टूडेंट फैक्टराइज करना है हमें L माइनस एम द होल स्क्वायर प्लस 4LM को, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस M स्क्वायर प्लस 4LM, ठीक है। तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 ही होता है, तो L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर, यानी कि L प्लस M द होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 14. Find the value of 16x square plus 40xy plus 25y square when x equals to 3 and y equals to -2. यानी कि x की जगह 3 पुट करना, y की जगह -2 को पुट करना, उसे सॉल्व करना है, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो या फिर पहले इनको एक्सपेंड कर देंगे हम, मतलब इसको वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लेकर चलेंगे, ठीक है, और कॉम्पैक्ट कर देंगे, जैसे कि 4x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y प्लस 5y द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y द होल स्क्वायर। अब x की जगह हम पुट करेंगे 3 को, y की जगह हम पुट करेंगे -2 को, ठीक है। तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू -2, ओके, and it will be 4 3 12, 5 into -2 is -10. So 12 minus 10 will be 2. 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, that is 4, ठीक है। Now let's see the example 15. Find the value of 1.04 the whole square minus 0.96 the whole square. तो पहले हम 1.04 प्लस 0.96 देन 1.04 माइनस 0.96 करेंगे, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करा तो कितना आ जाएगा, यूजिंग द एंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस बी, यह एंटिटी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व हम जब करेंगे तो ये दोनों तो ऐड होके 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा दोनों को माइनस करके 0.08, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो 0.16 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल 16. सिंप्लीफाई करना है हमें 5.76 इंटू 5.76 इंटू माइनस 2.24 इंटू 2.24 अपॉन में 5.76 माइनस 2.24, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5.76 द होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 2.24 द होल स्क्वायर अपॉन में 5.76 इंटू माइनस 2.24, ठीक है। अब हम इनको एडअप कर देंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ओके। यानी कि 5.76 प्लस 2.24, 5.76 माइनस 2.24। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों को कट कर देंगे, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 8, ओके। Now student, let's move into the exercise 12.2. So here you can see the first question. Factorize the following expression. हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है following expression को, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 4 जब करेंगे तो डेट इज 16, और मल्टीप्लाई करके 16 है, प्लस और माइनस करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 3 क्या होता है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर इक्वेशन दी गई है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो बेसिकली स्टूडेंट 4 इंटू 4 16 होता है, 4 प्लस 4 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके। यहाँ पर हम 4x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1, ठीक है। सो इट विल बी x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में होगा 4x माइनस 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टराइज यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी। सो हेयर यू कैन सी 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16 आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 और 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को यूज करके आपको फॉलोइंग एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। जैसे कि 9x स्क्वायर है, ओके, फिर माइनस 12x है प्लस 4 माइनस 4y स्क्वायर है, ठीक है। तो इनमें आपको कॉमन देखना है, कॉमन लेना है, ठीक है, फिर इनको सॉल्व करना है, आपको एकदम फैक्टराइज फॉर्म में बनाना है, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So here you can see student question 4. The factorization of 3x square minus 49 is 3x square minus 49 का factorization क्या हो सकता है? So it will be 6x plus 7 and 6x minus 7. Okay, 6x plus 7 and 6x minus 7, that is option D. ठीक है, तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए सॉल्व करके और करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट. Now student, the next topic is factorization of quadratic trinomials of the form x square plus px plus q. तो यहाँ पर बताया गया है फैक्टराइजेशन किसका, ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स ऑफ द फॉर्म जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में है, ठीक है. इन दी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पी एंड क्यू क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है. एंड
Compare with the identity x plus a x plus b equals to x square plus a plus b the whole x over here, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई x से हो जाएगा प्लस ए बी, ठीक है, या फिर x स्क्वायर प्लस a plus b the whole x then plus ab that will be x plus a and then x plus b, ठीक है, a and b are constants. Okay, coefficient of x equals to p and which is equal to a plus b, that is the sum of the constants. So the term independent of x equals to q equals to ab product of the constant जो कि independent है, ठीक है. Therefore to factorize x square plus bx plus q we first find two numbers such that their product is q. हमें पहले दो नंबर फाइंड आउट करने होंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या हो, q हो, ठीक है. एंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड देयर सम इज p कोफिशिएंट ऑफ x. जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए x से और जो सम है वो कोफिशिएंट होना चाहिए x का, ठीक है. जैसे हमने अभी ऊपर किया ही था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इसे हम बोलते हैं, ठीक है. वी हैव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ 4 सिचुएशंस. 4 सिचुएशन की बेसिस में 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जैसे कि ए एंड बी जब बोथ होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, फिर है ए एंड बी जब बोथ नेगेटिव होते हैं. नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, मतलब ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है. नेक्स्ट वन ए नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव, ए कभी नेगेटिव होता है तो बी पॉजिटिव होता है, ठीक है. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट एग्जाम्पल 17. सो फैक्टराइज करना है हमें 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 को, ठीक है. तो x के जगह लाइक कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो क्या है, दैट इज 9. ओके, टर्म इंडिपेंडेंट जो है x के वो क्या है, 14 है. ओके, वी फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 14 एंड सम इज 9. हम दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो है वो 14 और जो सम है वो 9 हो, ठीक है. सो फैक्टर ऑफ 14 जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है, 14, 1 और 7 और 2, ठीक है. तो 14 प्लस 1 अगर हम करेंगे तो दैट विल बी 15 एंड 7 और 2 को ऐड करेंगे दैट विल बी 9. ओके, सो दैट मीन्स इसमें ये हुआ है कि मतलब कौन से नंबर है जिनको हमें मल्टीप्लाई करके 40 मिल रहा है, 7 और 2 और ऐड अप करके 9 मिल रहा है. ओके, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14. आपको यहाँ पर साइन का भी ध्यान देना है, ठीक है. फिर ये हो जाएगा x कॉमन x प्लस 7, 2 कॉमन x प्लस 7, x प्लस 7 और x प्लस 2 आपका आ जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फैक्टराइज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18. तो फर्स्ट आपको कोफिशिएंट ऑफ x दिया है दैट इज -9 विच इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 18. ओके, जो कि इंडिपेंडेंट है x के, जो कि इक्वल है 18 के, ठीक है. वी फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 18 हुज सम इज -9. हम दो फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं 18 का जिसका सम जो है वो -9 है, ठीक है. एज 18 इज पॉजिटिव, एज यू नो कि 18 जो है वो पॉजिटिव है, द फैक्टर्स आर ईदर बोथ पॉजिटिव. तो फैक्टर्स जो होंगे वो ईदर बोथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और या फिर बोथ नेगेटिव होंगे, ठीक है, या फिर बोथ क्या होंगे स्टूडेंट, नेगेटिव होंगे. तो मतलब यहाँ पर ये बोला कि अगर 18 पॉजिटिव है तो फैक्टर्स जो होंगे वो या तो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे, ठीक है. सो सिंस द सम इज नेगेटिव बोथ द फैक्टर्स मस्ट बी नेगेटिव. अगर सम नेगेटिव है तो बोथ द फैक्टर्स जो है उनको भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है. सो एज यू कैन सी 18 इक्वल्स टू -18 इंटू -1. ओके, that will be positive 18 only. And when you add on -18 plus -1 plus minus it will be -19, ठीक है. Here also you can see the same thing. Okay, therefore the factors are -6 and -3 whose sum is -9, ठीक है. तो इसका मतलब जो फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, -6 और -3 हुआ जिसके सम जो है वो -9 है, ठीक है. सो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 दैट मीन्स 6 3 is 18 and 6 plus 3 is 9. So -6x minus 3x, x common x minus 6 और x minus 3 is there, ठीक है. Now student let's move into the example 19. तो फैक्टराइज करना है हमें x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को, ठीक है. तो इसमें भी आप स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड कर सकते हो, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3, ठीक है. नाउ लेट्स मूव इनटू द एग्जांपल 20. सो फैक्टराइज करना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 को. तो यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करके 4 मिलना चाहिए. तो 3 के टर्म में 4 टाइम्स आता है, ठीक है, जबकि 2 के टर्म में 6 टाइम आता है. 2 6 12, तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x, तभी तो हमें 4x मिला होगा -4x, ठीक है, -12 ओवर हेयर, ठीक है. फिर इसको हमने स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करने के बाद x माइनस 6 हमें मिला इधर और x प्लस 2 मिला, ठीक है. नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 12.3. सो हियर यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ टू नंबर्स, फाइंड द नंबर. हमें प्रोडक्ट दे रखा है, सम दे रखा है नंबर का, हमें फाइंड आउट करना है नंबर को, ठीक है. सो बेसिकली स्टूडेंट हमें यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है और सम दे रखा है नंबर का, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर को, ठीक है. सो यू हैव टू सॉल्व दिस वन एज ए होमवर्क पार्ट. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट वन ओवर हियर इज फैक्टराइज. हमें यहाँ पर फैक्टराइज करना है. आपको नंबर दिया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6.
आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस या माइनस करके 5 आए, जैसे कि 2 और 3, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 2 प्लस 3 इज 5। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। ओके, ये दोनों टीम x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन होगा तो x माइनस 2 इधर आ जाएगा, तो इट विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 3 ओवर हियर। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन, द फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या है, तो 6 यानी कि वो हमने ऊपर जैसे किया वैसे ही फॉर्म में है, बस ये कि यहाँ पर प्लस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस करके आंसर आपको 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, तो दैट इज 2 3 6, 2 प्लस 3 इज व्हाट, दैट इज 5। ओके, सो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी in the positive one only, that is option A, x plus 3 and x plus 2. ठीक है, now the next one is also like that, you have to like read the question और question read करने के बाद आपको correct option पे टिक लगाना है solve करके। ठीक है, now student, let's move into the next concept, that is division of algebraic expression. So we have done addition, subtraction, multiplication of algebraic expression. Here we shall do the division of one algebraic expression as by another. तो यहाँ पर हम करने वाले division, ठीक है, one algebraic expression का दूसरे से। ठीक है, so we call that division is the inverse operation of multiplication। मतलब हम इस division को क्या बोलते हैं, inverse operation बोलते हैं as compared to multiplication one। ठीक है, for example 2x into 3x square equals to 6x cube। okay, therefore 6x cube divide 2x जो है वो क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यहाँ पर ये जाके डिवाइड हो जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस ऑल्सो, 6x क्यूब डिवाइड 3x स्क्वायर इक्वल टू 2x। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट 5x इंटू एक्स प्लस 4, ओके, विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 20x। सो 5x स्क्वायर प्लस 20x को हम डिवाइड करेंगे 5x से, दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, then this is also written as 5x square plus 20x divide x plus 4 equals to 5x। ठीक है, now let's see student division of a monomial by another monomial, कि कैसे monomial को डिवाइड करेंगे दूसरे monomial से। ठीक है, so we can divide a monomial by another monomial by dividing their coefficient, उनकी coefficient को डिवाइड करके हम डिवाइड कर सकते हैं। then divide the variables separately by subtracting their exponent। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेटली बाय subtracting their exponents, उनके एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, we divide the monomial coefficient of the dividend by the numerical coefficient of the divisor। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे मोनोमियल कोफिशिएंट जो है डिविडेंड का, ठीक है, किससे, by the numerical coefficient of the divisor से। ठीक है, follow the rule that when the dividend and the divisor have the like sign, the quotient is positive, and when the dividend and the divisor have the unlike sign, the quotient is negative। हमें रूल को फॉलो करना है कि जब डिविडेंड और डिवाइजर जो है उनमें लाइक साइन आएगा तो क्वोशिएंट जो है वो पॉजिटिव होगा, और जब डिविडेंड और डिवाइजर में अनलाइक साइन आएगा तो जो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, now to divide the variables of the same dividend by the variables of the divisor, subtract the exponent of the same literal। आपको subtract करना होगा exponent को of the same literal। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 21 दिया है आपको, -35 x की पावर में 5 y की पावर में क्यूब बाई -7x क्यूब y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे, माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x जो है वो 2 हो जाएगा और y जो है वो 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 5x स्क्वायर y। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। Now let's see student division of a polynomial by a monomial। Okay, so we divide each term of the polynomial by a monomial। Okay, जैसे कि एग्जाम्पल 22 आपको दिया है, डिवाइड करना है 6x की पावर में 4 y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y 4 एंड z की पावर में 2 दैट इज स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर y z 4 बाय डिवाइड करना है बाय -3x स्क्वायर y से। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्टूडेंट इनको हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेटली सबका डिनोमिनेटर रख सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा सेपरेट फॉर्म में। अब यहाँ पर ही कट जाएगा 3 2 6 और यहाँ पर ही 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी -2x स्क्वायर y z स्क्वायर प्लस 4/3 y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4 z z टू द पावर 4। ठीक है,
ये आपका आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, डिवीजन ऑफ अ पोलिनोमियल बाय अ पोलिनोमियल। सो डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन, वी फैक्टराइज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द न्यूमरेटर डिविडेंड एंड द डिनोमिनेटर डिवाइजर। हम फैक्टराइज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इन द न्यूमरेटर डिविडेंड और डिनोमिनेटर डिवाइजर में, ठीक है, इनटू इररेड्यूसिबल फैक्टर्स, इररेड्यूसिबल फैक्टर में, एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर को फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 23 आपको दिया है, इधर फैक्टराइज करना है हमें एक्सप्रेशन को और डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे आपको दिया 50, जैसे आपको यहाँ पर दिया 39y³ 50y² माइनस 98 डिवाइड 26y² 5 प्लस 7। तो 50y² माइनस 98 जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2, फिर ब्रैकेट में 25y² माइनस 49, ठीक है, और 25 हो जाएगा 5 द होल स्क्वायर माइनस 7 द होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा a² माइनस b² है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 और a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 7, ठीक है। और दूसरा आपको दिया है यहाँ पर, नाउ वी कैन से लाइक दिस वन कैन बी सॉल्व लाइक दिस, ओके, मतलब कि इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आ गए, ठीक है। तो 39y³ इंटू 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 7 एंड इन दिस 5 माइनस 7। अब ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे 5 प्लस 7, ओके। अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे 13 3 से 39 होता है, ठीक है। y² कट हो जाएगा, यहाँ पर एक ही y बचेगा, ओके। सो इट विल बी 3y ब्रैकेट में 5 माइनस 7। तो इस तरीके से आप इन्हें करोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, डिवीजन विदाउट फैक्टराइजेशन, डिवीजन बिना फैक्टराइजेशन के। The step of the division of a polynomial by a polynomial are as follows, ठीक है। Arrange the dividend and the divisor with the power of the unknown variable in descending order, descending order में आपको अरेंज करना है पहले, फिर उसके बाद write the dividend and divisor in division format, फिर dividend divisor को division format में आपको लिखना है। Divide करना है first term of the dividend by the first term of the divisor, उनसे डिवाइड करना है। The result is the first term of the quotient, तो रिजल्ट जो होगा फर्स्ट टर्म होगा क्वोशिएंट का, ठीक है। Now next thing is multiply all the terms of the divisor by the first term of the quotient and subtract the product from the dividend। आपको multiply करना है सभी terms of the divisor के by the first term of the quotient के साथ and subtract करना है product को from the dividend से, ठीक है। So now proceed with the remainder as a new dividend। आपको proceed करना है with the remainder as a new dividend, being down one or more terms of the dividend is left and proceed as before, okay। So इसमें क्या होगा, one or more टर्म्स जो होंगे डिविडेंड के वो बच जाएंगे एंड फिर हमें उसे आगे की तरफ लाइक लेकर जाना है, ठीक है। नाउ रिपीट द प्रोसेस अंटिल देयर इज नो रिमाइंडर और इट्स डिजिट इज लेस देन दैट ऑफ द डिवाइजर। अब हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर जो है वो बचे ना, या फिर उसका डिग्री जो है वो लेस देन हो दैट ऑफ द डिवाइजर, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल 24 दिया है, डिवाइड करना है 2x³ प्लस x² माइनस 5x माइनस 3 को किससे, 2x प्लस 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2x प्लस 3 लिखा। अब 2x³ बनाना है तो हम क्या करेंगे, x² को लेंगे, x² इससे इंटू होगा तो 2x³ हो जाएगा, ठीक है। पावर ऐड ऑन हो जाएगी, फिर x² 3 से होगा तो 3x² हो जाएगा, इसी के नीचे लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x², ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है क्योंकि, ठीक है, माइनस 5x। अब यहाँ पर x लेंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस 2x², ठीक है, एंड देन 3x 5x के नीचे, फिर ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, ये 5x माइनस 3x 2x हो गया, 2x माइनस 3, ओके। देन वी टेक 1 माइनस 1, फिर ये हो जाएगा माइनस 2x एंड माइनस 3, तो प्लस प्लस करेंगे तो कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकते हो। क्वोशिएंट आपका आया x² माइनस x माइनस 1 एंड रिमाइंडर 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 25। सो here you can see divide minus 14x³ plus 12x² plus 3x4 minus 5 plus 6x by x² minus 1 minus 4x। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x² minus 4x minus 1, ठीक है। फिर हमने पहले 3x² को लिया, ये हो गया 3x4, ये हो गया 12x³ और ये माइनस 3x², ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे, 14 में से 12 गया, 2 माइनस 2x³, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 15x² प्लस 6x, ठीक है। अब माइनस 2x हमने लिया तो ये हो गया माइनस 2x³, यहाँ पर माइनस 4x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 8x², ओके, एंड देन माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएंगे, 15 में से 8 को माइनस किया 7x² और यहाँ पर 6 में से 2 को माइनस किया तो 4x, माइनस 5 को नीचे लेकर आए, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्लस 7 करेंगे, 7x² माइनस 28x माइनस 7, ठीक है। ये दोनों कट हो जाएगा, 32x प्लस 2 आ जाएगा आपका, तो रिमाइंडर आपका इतना आया है और क्वोशिएंट आपका इतना आया है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 12.4। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग मोनोमियल बाय द मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देगा 64 y के पावर में 4, ओके। तो
इसको आप ऐसे लिख दोगे 64 y के पावर में 4 अपॉन 4 y के पावर में क्यूब। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 के टेबल से डायरेक्टली कट कर सकते हैं ऐसे, तो 4 के टेबल से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बचा 24, 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा 24, 4 6 जा 24, तो 16 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड y क्यूब है यानी कि 4 - 3 y1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 y के पावर में 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1। तो ऐसे स्टूडेंट आपको बाकी का भी करना है क्वेश्चन इसी तरीके से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय द मोनोमियल्स, यानी कि पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है मोनोमियल से। ठीक है, जैसे आपको दिया है यहाँ पर -4x³ - 6x² बाई 2x, 2x से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इनमें कॉमन ढूंढोगे आप। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, 2x है और 2x² हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, -2x² को हमने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा 2x + 3 बचा। ठीक है, एंड इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 2x से ही। ओके, तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, ये कट होके एक x यहाँ पर बच जाएगा, तो -1x हुआ यहाँ पर, तो इसे हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -2x³ - 3x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डिवाइड करके आंसर को लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड। हमें फैक्टराइज करना है एक्सप्रेशन को, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 5p² - 25p + 20 डिवाइड p - 1। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कर सकते हो कि 5 को कॉमन ले सकते हो इधर, क्योंकि तीनों जो है वो 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख दोगे इसे 5, इधर p² हो जाएगा, इधर -5p हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या है p - 1 है। ओके, नाउ 1 × 4 क्या होता है, 4 होता है, और 1 + 4 क्या होता है, 5 होता है। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म कर देंगे हम यहाँ पर, 5 को हमने इधर रखा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इधर p² - 4p - p + 4। ओके, एंड अपॉन में p - 1। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पर दो का ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, सो इट विल बी 5, फिर इधर हो जाएगा p कॉमन और ये हो जाएगा p - 4 ओवर हेयर। ठीक है, एंड यहाँ पर -1 कॉमन, इधर p - 4 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में p - 1। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर ब्रैकेट में आएगा p - 4 और एक होगा p - 1 और अपॉन में क्या है p - 1 है। ठीक है, तो इसको हम कट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर है, फाइनल आंसर स्टूडेंट, वो आ जाएगा 5 × p - 4, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5 × p - 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज डिवाइड विदाउट फैक्टराइजेशन। बिना फैक्टराइजेशन के हमें डिवाइड करना है कि यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया x² + 5x + 4, जिसे डिवाइड करना है x + 1 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 1। ठीक है, और इधर हमने लिखा x² + 5x + 4। ओके, अब यहाँ पर x है ऑलरेडी, तो हमें एक ही x लेना होगा इधर, तो x × x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, इनके पावर ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और x × 1 क्या होगा, +1x हो जाएगा। ओके, अब माइनस साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस थे इस वजह से ये दोनों कट हो जाएंगे। 5 में से 1 को माइनस किया तो 4x आ गया इधर, और इधर 4, तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, +4 लेना है। तो 4 × x इज 4x एंड 4 × 1 इज 4। ठीक है, साइन चेंज किया हमने, माइनस। ठीक है, तो दोनों कट होके कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, पर आंसर जो हमारा वो है x + 4, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x + 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द फिफ्थ क्वेश्चन, द क्वोशिएंट ऑफ 35x³ डिवाइड -7x² इज। तो इसका क्वोशिएंट क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिया गया है 35, हमें यहाँ पर दिया गया है 35x³ अपॉन में -7x² दे रखा है हमें। ठीक है, तो 7 से हमने इसको कट कर दिया, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर हमने कट करा तो 1x बचेगा, यानी कि आपका आंसर आएगा -5x। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको स्टूडेंट क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको अच्छे से टिक करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द
next topic, that is common errors in algebraic operation. So to learn literal numbers in an entirely new concept starting from 7th class, most students do not follow their abstract meaning and sense. मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग नहीं फॉलो करते, उसका सेंस फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जब उन्हें नए कॉन्सेप्ट को शुरू करना होता है, दे कमिट मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, विच शो दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लिटरल्स, सिम्बल्स एंड ग्रुपिंग सिम्बल्स, मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं है लिटरल्स को लेकर, सिम्बल्स को लेकर और ग्रुपिंग सिम्बल्स को लेकर. टू रिमूव प्रिवेंट देयर मिस्टेक्स एरर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे मस्ट रीलर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट. पहले उनको बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना होगा. जैसे कि first thing, the most common basic error is that the student do not remember the meaning of the term like 3x. वो नहीं समझ पाते हैं कि meaning of the term जैसे कि 3x, ठीक है, जो कि होता है 3 into x, but they do not differentiate it from 3 plus x. Okay, so as symbol of multiplication is omitted between 3 and x, they take it wrong. To remove this error, they should do ample exercises related to the concept. तो उनको ample exercises उसकी concept के basis में ही करनी चाहिए. जैसे कि for example, put x equals to 2 in the following, ठीक है, x की जगह 2 पुट किया तो कितना आया, 6 आया इधर, ठीक है, यहाँ पर आया 5, ओके, इधर आया हमारा 1, इधर आया 3/2 फॉर्म में, ठीक है. Now next topic, next point is coefficient 1 of a term is usually not shown. जो coefficient 1 होता है term का, वो कभी दिखाई नहीं देता है, वो कभी दिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो 1 ही मानकर चलते हैं हम, ठीक है. When you add or subtract like terms, take account of it. पर जब हम add या subtract करते हैं like term को, तब हम उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है. जैसे कि 3x plus x plus 4x है, तो ये 1x माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 plus 4 that is 7 and 7 plus 1 is 8x, ठीक है. अब यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है. Now next is the students do not take care of the negative positive sign the multiplication. It is seen that the concept of negative numbers is not clear to the students. जो स्टूडेंट नहीं ध्यान से देखते हैं, तो उसका मतलब उनका अंदर जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव को लेकर, वो क्लियर नहीं हो रखा है, ठीक है. टू बी कंफर्टेबल विद नेगेटिव साइन, लर्न द नंबर लाइन फॉर इंटीजर अगेन. तो आपको अगर कंफर्टेबल होना है, तो आपको नंबर लाइन को फिर से सीखना होगा फॉर द इंटीजर्स अगेन. एंड रिमेंबर वाइल सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव वैल्यू मेक यूज ऑफ ब्रैकेट. और जब आप सब्ट्रैक्ट करो नेगेटिव वैल्यू को, तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है, ठीक है. जैसे कि x इक्वल्स टू -4 है, तो यानी कि 6 इंटू -4 करेंगे, -24 विल बी देयर. इफ दे फॉरगेट द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट भूल जाएंगे, द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे गेट इट एज 6 - 4 दैट इज 2, ठीक है. इस तरीके से उनको मिल जाएगा अगर वो ब्रैकेट या सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन का भूल जाएंगे तो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ ग्रुपिंग सिंबल. ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वर्किंग होता है ग्रुपिंग सिंबल का. फॉर एग्जाम्पल, दे सिंप्लीफाई 2 into x minus 5 or 2x minus 5, which is wrong. Remember, when you multiply an expression enclosed in a bracket by a constant or a variable outside, each term inside the bracket has to be multiplied by the constant or the variable, ठीक है. मतलब हर एक टर्म जो है constant या variable के साथ multiply होगा, ठीक है. जैसे -5 into x minus 2 है, तो ये -5 into x plus -5 into -2 हो जाएगा. Now student, here comes the 5th point, that is while squaring 3x the whole square, one student forgot to square 3 and he wrote it as 3x square, and the other forgot to square x and wrote it as 9x. You should make the concept clear. So यहाँ पर बोला है कि जब स्क्वायर करना था 3x द होल स्क्वायर को, तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, एक स्टूडेंट जो है भूल गया टू स्क्वायर द 3. मतलब एक स्टूडेंट जो है वो कम्प्लीटली भूल गया कि 3 को भी स्क्वायर करना था, ठीक है. तो उसने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर कर दिया, ओके. और दूसरा जो स्टूडेंट है, उसने स्क्वायर जो है उसने वो भूल गया कि कैसे स्क्वायर लगाना है x पर, ठीक है. सो उसने जस्ट आंसर क्या लिख दिया, 9x लिख दिया, ओके. सो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है, ओके. सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 3x द होल स्क्वायर दैट इज 3x into 3x which will be 9x square, okay. Now let's move into the 6th point, that is many students do not even understand the concept of division. In 5/5 they cancel the 5s and write 0, or in a/a they cancel the 2 terms and write 0. अब यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिवीजन को नहीं समझ पाते हैं. जैसे कि 5/5 है, तो उसमें क्या करते हैं, जब उसे कैंसिल करते हैं तो उसका आंसर वो 0 लिख देते हैं. ऐसे ही a/a है, उसे कैंसिल कर दे तो उसका आंसर वो 0 लिख देते हैं, ठीक है. बट दे मस्ट रिकॉल दैट 5 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट, दैट इज 1, एंड a डिवाइडेड बाय a इज 1, ओके. कैंसिलेशन डज नॉट गिव 0. जो कैंसिलेशन है वो आपको 0 नहीं देगा, ओके. हाउएवर इन सब्ट्रैक्शन 5 - 5 विल बी व्हाट, दैट इज 0, एंड a - a विल बी 0, ओके. सो ही मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होना चाहिए किसके बीच में, डिवीजन के बीच में और सब्ट्रैक्शन के बीच में, ठीक है. नाउ
next one is you can carry act cancellation is a division only when all the terms or expression in the numerator and denominator are related by the symbols of multiplication written or understood. But you cannot cancel when the terms are separated by positive or negative in the numerator or denominator. So student, here you can see a plus 4 upon a, comma, a plus 4 upon 4 is given over here, a minus 4 upon a minus 4 upon 4 is given over here, then a plus 4 upon a plus 4, a plus 4 upon a minus 4. So basically यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, ठीक है. Now next thing is instead you can solve some of them if required as follows. हम किसी को solve भी कर सकते हैं, जैसे कि a plus 4 upon a दिया है तो इनमें हम separately लिख सकते हैं, जैसे कि a upon a plus 4 upon a, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है. तो a upon a जो है वो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 plus 4 upon a मिल जाएगा. एंड ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया गया है a plus 4 upon 4, ये हो जाएगा a upon 4 plus 4 upon 4, 4 upon 4 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी a upon 4 plus 1, ठीक है. ऐसे ही a minus 4 upon a दिया है और ऐसे ही आपको a minus 4 upon 4 दिया है, ओके. Now let's move into the 8th one, that is when you use the identities, first learn them clearly and select the right identity to be used in the given situation. जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है x plus 5 the whole square, it will be what, x square plus 2 into 5 into x plus 5 square, so it will be x square plus 10x plus 25. Okay, some students square the x and 5 and write only x square plus 25, which is wrong. मतलब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि x और 5 को ही स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है. अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है x minus 5 the whole square, so it will be x square minus 2 into 5 into x plus 5 square, so it will be x square minus 10x plus 25. Okay, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको लिखते हैं x square minus 25 के फॉर्म में, जो कि गलत है, ठीक है. So now next is 2a plus 3 into 3a minus 4, so it will be what, 2a into 3a minus 4 plus 3 into 3a minus 4. Okay, so it will be 2a into 3a 6a square minus 2a into 4 is minus 8a and plus 3 into 3a is 9a minus 3 into 4 is 12. So it will be 6a square plus a minus 12. Some student multiply the first term of the two brackets, मतलब दो जो first term है two bracket का उसको multiply कर देते हैं, ठीक है, as 6a square and second term together as minus 12 and उसको फिर लिख देते हैं 6a square minus 12, जो कि गलत है, उनको पूरा लिखना है, ठीक है. स्टूडेंट मस्ट स्टडी दिस सेक्शन ऑन कॉमन एरर्स अगेन एंड प्रिवेंट देम, तो इस सेक्शन को उनको फिर से स्टडी करना होगा ताकि एरर जो है वो ना हो, ओके. Now let's move into the exercise part. Exercise 12.5. So here you can see the first question. Put x equals to 5 in the following expression and find the value. हमें x की जगह 5 पुट करना है और वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है. जैसे आपको यहाँ पर 3x दिया है तो x की जगह हम 5 को पुट कर देंगे, so it will be what? It will be 15. Okay. Now student, here you can see the next one, that is add the following. आपको ऐड करना है, ठीक है. जैसे 5 to x बोला है यानी कि x plus 5 हो जाएगा, ठीक है. x to y बोला है यानी कि x plus y हो जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, 5 विद x यानी कि 5x हो जाएगा ये, ठीक है. ऐसे ही x विद y तो xy हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में क्या करना है, 3x प्लस 5x प्लस x प्लस 2x दिया है, सबको एड ऑन कर देना है. 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 1 9, 9 एंड 2 हो जाएगा 11, सो इट इज 11x, ठीक है. इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू इफ x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -2, तो x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह -2 पुट करना है, सो दिस विल बी 3 into 3 into -2, so it will be 3 3 is 9, 9 2 is -18. okay, so आपका आंसर -18 आ जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई. यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है, 4x द होल स्क्वायर दिया तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ठीक है. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. नाउ नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई. 5a स्क्वायर अपॉन 5a स्क्वायर दोनों सेम है, दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 0 नहीं होगा 1 होगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज कैन यू कैंसिल आउट द टर्म्स इन द फॉलोइंग डिवीजन इफ नॉट सिंप्लीफाई दीज अदरवाइज. क्या आप कैंसिल आउट कर सकते हो टर्म्स को इन फॉलोइंग डिवीजन में, अगर नहीं कर सकते हो सिंप्लीफाई करना है तो आपको यहाँ पर दिए 3a प्लस 4 अपॉन 3a, तो इसको पहले हम सेपरेटली लिखेंगे यानी कि 3a अपॉन 3a हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 4 अपॉन में 3a, ठीक है. अब 3a कटोगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सो इट विल बी 1 प्लस 4 अपॉन 3a. अब यहाँ पर आप अगर सॉल्व करोगे वापस स्टूडेंट तो आपको सेम यही मिलेगा, ठीक है. सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस वन, ओके. तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज
मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोइंग ऑल द स्टेप्स। आपको मल्टीप्लाई करना है और स्टेप्स भी दिखाना है इधर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 2x + 3 और 2x + 3। अगर हम ध्यान से देखें ये a + b द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हो रहा है, ठीक है, तो इसको a + b द होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 3 को इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो हम a + b द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, ओके, जो कि क्या होता है a² + 2ab + b² होता है, ओके। तो यानी कि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 3, यहाँ पर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है, एंड देन प्लस 3 द होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2x का होल स्क्वायर का मतलब है कि 4x² प्लस 2 × 2 is 4, 4 3 is 12x and plus 9, okay. So this is your equation, okay. Now next is find and correct the error in the following mathematical statement। आपको यहाँ पर फाइंड करना है और करेक्ट करना है एरर को, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 5x + 4x = 9x², जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि 5x + 4x तो सिंपल 9x होता है, 9x² नहीं होता है। 9x² तब होता अगर 3x द होल स्क्वायर होता, तब 9x² आता, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एरर फाइंड आउट करके उनको करेक्ट करना है, ठीक है। Now student, let's move into the multiple choice question. So here you can see the 11th question, 4x + 2x + x + 3x is equal to, यानी कि आप सबको जो भी लाइक टर्म है इन सबको ऐड अप कर दोगे और इसको स्टूडेंट आप 0 नहीं मानोगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 4 + 2 हो गया कितना 6, 6 + 1 7, 7 + 3 हो गया 10x, ठीक है। सो आपका जो है करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज 10x, ओके। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसे अच्छे से सॉल्व करके करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। So I hope student that you understood this chapter. Now what you have to do, you have to practice each and every exercise. Now I will meet you in another class, and then student take care. Bye bye.